हाँ, यहाँ तक हो गया था. Start from the congenital disease of the kidney. तो सबसे पहले डिजीज ऑफ द किडनी से स्टार्ट करते हैं. तो नंबर 1 डिजीज इज द हॉर्सशू किडनी. इट इज अ कंजेनाइटल डिजीज. तो इसमें क्या होता है, द किडनी कंजेनाइटली बिकम्स अ हॉर्सशू शेपेड. So, if the kidney is horseshoe shaped, then the proper mechanism and metabolism function of the kidney will be hampered. So, यहाँ पे क्या होता है? Here, we have seen earlier, we have seen yesterday, the kidney as having two poles, the upper pole and the lower pole. In horseshoe-shaped kidney, the lower pole is joined. Okay, since the lower pole is joined or because a fibrous band a fibrous band is formed around the lower pole of the kidney, such that the kidney is joined together. Therefore, ureter from the ureter, the all the urine materials or the urine does not pass properly. So there is hampering of the proper functioning of the kidney. तो यहाँ पे क्या होता है, the lower pole is joined. Remember, ठीक है. उससे क्या होता है कि जो ureter pass होता है from the kidney, तो which is passing just above the lower pole, वो जो यूरेटर का जो फंक्शन है, दैट इज इट इज कनेक्टिंग फ्रॉम द pelvis of the kidney to the urinary bladder. जो फंक्शन है प्रॉपर यूरेटर का, इट इज गेटिंग हैम्पर्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, द यूरिन विल बिकम स्टैसिस सिंस द लोअर पोल इज जॉइंट. तो व्हाट आर द सिम्टम्स दैट पेशेंट विल गेट? It can be asymptomatic, but there will be an intermittent obstruction of the urine. Basically, urine stasis will be present because since the lower pole of the kidney is joined, a fibrous band is appeared around the kidney and it is congenitally. Since birth, it is forming. If the patient is asymptomatic, then for screening purpose, if the patient does USG of lower abdomen, then the doctor will see that the kidney is congenitally or the kidney is having the horseshoe-shaped kidney, or he or she might see the lower pole of the kidney is joined, and the symptoms somewhere the patient feel also. So it can be asymptomatic, it can be intermittent obstruction of the urine stasis will be present, recurrent UTI. Since the urine is stasis here, therefore recurrent UTI may occur in these kind of patients. And since there is a urine stasis and there is much possibility of formation of stool. So how we will do the investigation? We will do investigation via the X-rays, USG, or the IVP. IVP, intravenous pyelography, as we have discussed yesterday. What is the procedure? How we will do this procedure? So these are diagnosed incidentally. Firstly, the patient is asymptomatic. He or she does not complain any of the symptom, but incidentally or via doing a screening test, then it has been found that he or she is suffering from this horseshoe-shaped type of kidney. So how we will manage this case? We will manage if there is no obstruction or no symptoms, we have to do a follow-up checkup for the patient. And if there is obstruction or the patient is presenting any of the above symptoms, then we have to remove that fibrous band, or we have to remove the joining area or the joining part. So the part is nothing but we have to remove the isthmus. Isthmus is like it is forming the fibrous band around the lower pole. So we have to remove this isthmus or a part. So if the kidney is damaged due to recurrent urinary obstruction or recurrent intermittent obstruction or recurrent urine stasis or UTIs, वहाँ पे क्या होता है? There is recurrent chances of infection to the kidney. यहाँ पे क्या होता है? That kidney somehow during chronic period of time the kidney damage of the kidney occurs. Therefore, we have to do partial nephrectomy. Not radical, not fully. We have to do partial nephrectomy if the kidney is damaged. Okay, because kidney could not able to because the kidney does not do proper functioning. Okay, because here any obstruction is occurring. Therefore, we have to do partial nephrectomy where the involvement of the kidney. If the involvement of the kidney is there, then we have to do the partial nephrectomy. Next is the very important congenital disease, or it can occur during the adult also. It is the adult polycystic kidney disease. It is very much common also during screening procedure. Also, we used to find this mainly the polycystic kidney disease. तो किडनी में क्या होता है ना, बहुत सारा cyst develop हो जाता है. If you will see the image in Google, you can also appreciate this disease. It is the polycystic kidney disease and it is very much common
in adulthood. तो इसमें क्या होता है, there is formation of multiple cysts in the kidney. ठीक है, and cyst is filled with fluid. Kidney enlargement will be there. Kidney internal connection is lost. Parenchyma damage because since there is multiple fluid or multiple cyst is developed around the kidneys. ऐसा करके there will be multiple cysts around the kidneys and there will be damage to the parenchyma of the kidney. So the kidney will stop functioning it. Mostly ये जो होता है polycystic kidney disease, it is bilateral. ठीक है, it is genetically or hereditary. Must be like parents में इसमें हम लोग appreciate कर पाते हैं कि जो patient होगा उसके parents से hereditary हुआ होगा. And the defective gene, why की किस लिए होता है? Due to presence of defective gene present, that is the 16th number chromosome. This you have to remember. 16 chromosome का defective chromosome के वजह से ये polycystic kidney disease होता है. हम लोग जितने सारे disease पढ़ रहे हैं थोड़ा short नहीं पढ़ रहे because if I will going to cover in detail तो हमारा syllabus खत्म नहीं होगा. Just एक basic idea लेने के लिए हम लोग इसको short में देख लेते हैं. Okay, तो उसी में ही एक हम लोग ने देखा, first is the horseshoe-shaped kidney and second is the polycystic kidney disease. Polycystic kidney disease, remember, it is a genetic or hereditary disease due to defective gene, that is the 16th number of chromosome. It is basically transferred from the parents and there will be a formation of multiple cysts which is having fluid filled cyst. Okay, इसमें क्या करते हैं, क्लिनिकल फीचर सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट का किडनी का एनलार्जमेंट होगा. पेन कैन आल्सो बी देयर अराउंड द लंबर एरिया. ठीक है, because we have seen the position of the kidney yesterday कि कहाँ पे exact position है किडनी का, and the pain will be around the loin area. ठीक है, there will be a dragging, dull, aching pain. Hematuria can also be present. There is chances of any mass formation around the kidney. Infection can also appear and urine output there will be low because kidney is proper functioning of the kidney is getting hampered due to formation of these multiple cysts around the kidney. Investigation में USG में हम जब screening test भी कराते हैं, if the patient is asymptomatic, we can appreciate this polycystic kidney disease. And CT scan MRI can also be a investigating tool to find out this cystic disease. IVP and IVU से भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. ट्रीटमेंट कैसे करना है? इफ अगर बाइलेटरल होगा, इफ देयर इज बाइलेटरल, सो अगर बाइलेटरल किडनी होता है तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग दोनों किडनी को रिमूव कर देंगे. यू हैव टू सेव वन किडनी. इंसान एक किडनी में भी जिंदा रहता है. तो इफ द बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट इज देयर, तो हम लोग को उसमें ये देखना है कि इन केस ऑफ बाइलेटरल व्हिच किडनी इज मोर डैमेज, देन यू हैव टू रिसेक्ट दैट किडनी. यू हैव टू डू नेफ्रेक्टोमी. If unilateral is involved, then जो involvement है किडनी का, we have to nephrectomy that kidney. If the bilateral is damaged, then we have no other options rather than hemodialysis. Hemodialysis करना है, then renal transplant after matching the HIV. ठीक है, तो इसमें हम लोग renal transplant भी करते हैं if bilateral kidney is involved. तो ये भी क्या होता है, due to defective gene और due to hereditary polycystic kidney disease हम लोग को मिलता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द हाइड्रोनेफ्रोसिस. ठीक है, ये दोनों हो गया हमारा कंजेनाइटल मेनली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो कि डिफेक्टिव जीन के था और एक ऑस्टियोसेप्ट किडनी. अब आते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस में. तो हाइड्रो मींस क्या होता है? हाइड्रो मींस वाटर एंड नेफ्रोसिस इज द किडनी. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ द किडनी ड्यू टू पार्शियल और इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी आउटफ्लो. तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा मान लो दिस इज द किडनी पार्ट एंड दिस इज द यूरेटर फ्रॉम द पेल्विस कमिंग एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ दिस यूरेटर. क्यों डायलेटेशन होता है? सिंस किडनी इज एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटेरियल और द यूरिन जो निकाल रहा है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से यूरिन निकल रहा है वाया द यूरेटर. somehow there can be an obstruction here around the ureter, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यूरिन पास हो रहा है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरेटर में जा करके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है एंड देयर इज अ डायलेटेशन, एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम द किडनी टू द अराउंड द यूरेटर वाला पार्ट, मेनली जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द पेल्विस ऑफ द किडनी. So there is an aseptic dilatation of the kidney due to partial or intermittent obstruction. There can be an intermittent, can दो तीन जगह में हो सकता है, और partial एक जगह में हो सकता है, but it is not complete. It is an obstruction of the urinary outflow. Since urinary outflow का obstruction से ये aseptic dilatation हो रहा है,
हाइड्रोनेफ्रोसिस सम ये कहीं का एक रेनल स्टोन की वजह से भी हो सकता है, और देयर कैन बी चांसेस ऑफ एनी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अराउंड द यूरेटर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो रहा है, नैरोइंग हो जाता है, मतलब देयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अराउंड द यूरेटर वाला पार्ट, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज एन एसेप्टिक डायलिटेशन, इसकी वजह से जो यूरिन है आउटफ्लो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इसकी वजह से डायलेट हो जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन। टाइप्स क्या है, इट कैन बी यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस और बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। बायलैटरल मींस इन्वॉल्विंग द बोथ द किडनीज। तो यूनिलैटरल, व्हाट आर द कॉजेज और व्हाट आर द एरिया इन्वॉल्व्ड? नंबर 1 is the pelvic ureteric junction stenosis, means the pelvis of this kidney and the ureteric यानी ureter वाला जंक्शन। देखो यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, दिस इज द नंबर 1 पार्ट, यहाँ पे pelvis and ureteric junction, दिस इज यहाँ पे। तो यहाँ पे पेल्विस आता है, इसके बाद में यूरेटर का स्टार्ट आता है। जंक्शन यहाँ पे हो सकता है यूनिलैटरल में। एंड नंबर 2 इज द इंट्राम्यूरल कंडीशन। इंट्राम्यूरल कंडीशन मींस यहाँ पे मार्किंग किया है नंबर 3। ओके, ये जो नंबर 2 है यहाँ पे, ये हाँ, ये इंट्राम्यूरल पार्ट क्या होता है ना, यहाँ पे इंट्राम्यूरल पार्ट ये नंबर 3 है यहाँ पे। इंट्राम्यूरल पार्ट इज ये जो ओपनिंग है जो ब्लैडर का, दिस इज द इंट्राम्यूरल पार्ट। अगर यहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तब भी एसेप्टिक डायलिटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो अगर यहाँ ये दोनों के बीच में अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहा तो यहाँ पर भी ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोनेफ्रोसिस कैन ऑकर। तो पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन स्टेनोसिस का एंड इंट्राम्यूरल कंडीशन जिसके अंदर आता है यूरेटर का स्ट्रक्चर। तो यूरेटर में स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला कि माइट बी देयर कहीं स्टेनोसिस हो गया, नैरोइंग हो गया यूरेटर का, ठीक है, ड्यू टू एनी इन्फ्लेमेशन और पोस्ट ट्रॉमा और पोस्ट सर्जरी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अराउंड द यूरेटर, जिसकी वजह से यहाँ पे एसेप्टिक डायलिटेशन हो गया, यहाँ से यूरिन प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो रहा है टुवर्ड्स द ब्लैडर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। फिर इसके अंदर आता है इन इंटरम्यूरल कंडीशन यूरेटरिक ऑरिफिस ओपनिंग इज नैरो। यूरेटरिक यानी यूरेटर का जो ओपनिंग है दिस इज इट बिकम्स नैरो, देयरफॉर यहाँ पे डायलिटेशन हो गया। सी इज द यूरेटरिक स्टोन, जैसे मैंने बताया यूरेटरिक स्टोन से भी ये हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत कॉमन मिल सकता है। नेक्स्ट कम्स बाइलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस व्हिच इन्वॉल्विंग होल बाइलैटरल किडनी। तो इसमें नंबर 1 आता है कंजेनाइटली। तो कंजेनाइटली बाइलैटरल हो सकता है ड्यू टू यूरेटरिक स्ट्रक्चर, ऐसा देखा गया कंजेनाइटली बाय बर्थ यूरेटर का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल रहा है। सो हाउ वी विल गोइंग टू ऑपरेट, वी विल गोइंग टू ऑपरेट विद द पोस्ट यूरेटरी वॉल्व डिस्फंक्शन। तो इसमें हमको सर्जरी करके हमको ट्रीट करना है। एंड सिंस यहाँ पे और एक कंडीशन दिया हुआ है एक्वायर्ड वाला कंडीशन में, ये देखते हैं। तो एक्वायर्ड वाला कंडीशन में जब मान लो कोई ब्लैडर का ट्रॉमा हुआ या फिर ब्लैडर का ट्यूमर हुआ एक्वायर्ड कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब यूरिन ब्लैडर है मान लो यहाँ पे ये ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से ये इसमें फिलअप नहीं हो रहा ब्लैडर में, जिसकी वजह से यहाँ पे एसेप्टिक डायलेट हो गया यूरेटर का। और प्रोस्टेट बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और भी प्रोस्टेटिक कैंसर, जिसकी वजह से क्या हम लोग को मिलता है, देयर इज यूरिन का क्या हो जाता है, कभी कभार ठीक ठाक से यूरिन जो है वो रिलीज नहीं होता है। एंड ड्यू टू दिस यहाँ पे जो प्रोस्टेट प्रेजेंट रहता है जस्ट अराउंड दी और बिहाइंड दी ब्लैडर, जिसकी वजह से ये लाइक इसका हाइपरप्लेशिया और दी हाइपरट्रॉफी की वजह से प्रोस्टेट का हाइपरट्रॉफी की वजह से इसके प्रेशर की वजह से क्या होता है यहाँ पे इसका लाइक जो आउटफ्लो हो किडनी का जो यूरिन आउटफ्लो जो हो रहा है ब्लैडर की तरफ वो भी हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से देयर इज डायलिटेशन। यूरेथ्रा और पेनाइन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से भी वो क्या होता है, बैक फ्लो होता है। बैक फ्लो होता है वो जो यूरिन वाला पार्ट और फ्रॉम जो कलेक्टिंग डक्ट से आ रहा है उसकी वजह से भी एसेप्टिक डायलिटेशन हो रहा है। एंड इन नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है ड्यू टू बिकॉज वहां पर प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लैडर कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर का कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे बैक फ्लो होता है, इसके अंदर जो यूरिन है वो बैक फ्लो होता है और उसके बाद सेप्टिक डायलिटेशन कराता है। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉजेज which occurs during hydronephrosis. We have seen the unilateral hydronephrosis causes and the bilateral hydronephrosis causes. कभी कभार पोस्ट यूरेटरल वॉल्व का डिस्फंक्शन होने के वजह से भी ये बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है। तो उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, क्या कराएंगे हम लोग, यूरिन टेस्ट कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए यूएसजी आईवीपी यानी इंट्रावेनस माइलोग्राफी और इंट्रावेनस यूरोग्राफी हम लोग कराएंगे, ठीक है। देन सीटी स्कैन एंड एमआरआई वी कैन आल्सो परफॉर्म। और उसमें क्या मिलता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में एक शेप टाइप हम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं
वहां पे बेसिकली ये ऑब्ट्यूज एक एंगल का हो जाता है, बेसिकली जो हमारा कैलिक्स वाला पार्ट है कप शेपेड, वो जब टाई पुश करते हैं इट बिकम्स अ कप शेपेड। ठीक है, नॉर्मल जो नॉर्मल जो शेप है वो समवॉट फ्लैट होता है, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसीड्यूर जो कैलिक्स होता है वो ऑब्ट्यूज शेप हो जाता है। वो भी रहने दो, जस्ट इसका जो पेल्विस वाला का जो इमेज है वो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द आईबीयू। ये अगर नहीं समझ आए तो रहने दो, ये जस्ट इन्वेस्टिगेशन बस ये नाम रखो कि आईबीपी एंड आईबीयू, इंट्रावेनस फाइलोग्राफी और इंट्रावेनस यूरोग्राफी में टेस्ट करते हैं या फिर सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। सीटी स्कैन में हमको ये पता चल जाता है कि एक्सटेंट ऑफ द किडनी डिजीज कितना है। ठीक है, देन ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, रिमूव द कॉज ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो भी कॉज है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर को रेसेक्ट करते हैं, अगर मान लो कोई रेनल स्टोन है, स्टोन को बेस हो रहा है तो उसको रिमूव करते हैं, अगर देयर इज एनी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन तो उसको हम डायलेट करते हैं ताकि इसको करेक्ट कर सके। किडनी फंक्शन पे एक्सेस करते हैं, इफ द किडनी इज डैमेज देन वी हैव टू डू नेफ्रेक्टोमी लास्ट में। ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोनेफ्रोसिस वाला टॉपिक। यहाँ से 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। रेनल स्टोन जो है वो हमने कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, वेसिकल स्टोन, तो ये आई थिंक तुम लोग को याद होगा। यहाँ से स्टोन के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट देख लेना कि ESWL किसको बोलते हैं, ECNL किसको बोलते हैं। इट इज वेरी कॉमन टॉपिक, कॉमन क्वेश्चन, और ये लास्ट ईयर पूछा भी गया था ESWL के बारे में एंड ECNL के बारे में। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं किडनी ट्यूमर्स के बारे में। किडनी ट्यूमर्स के बारे में देखते हैं कि इट कैन ऑकर इन स्मॉल किड्स और एडल्ट्स। ठीक है, ये भी कॉमन है। किडनी ट्यूमर्स कैन प्रेजेंट इन वन किडनी और बोथ किडनी। ओके, इट कैन प्रेजेंट इन स्मॉल रीजन टू एक्स्ट्रारेनल एरियाज। इट कैन बी स्प्रेडिंग इन नेचर और इट कैन इन्वॉल्व अ स्मॉल एरिया। देन it could be benign or malignant, so it can be cancerous or it can be benign, these kidney tumors. तो kidney tumor के अंदर let us see what are the benign and what is the malignant condition. तो benign के अंदर it is, we all know that benign condition किसको बोलते हैं, which is localized around the area or it is localized, since we are studying the kidney part, so it is localized to the kidney and the growth will be slow growth, but in case of malignancy the growth will be fast, and in case of malignancy it can spread from one organ to the other organs and it is fast growing. तो एक प्रॉपर तुम लोग एक बेनाइन एंड मैलिग्नेंट कंडीशन का ट्यूमर में डिफरेंशिएट कर लेना। यहाँ तो वी आर स्टडीइंग द किडनी ट्यूमर्स, बट फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन टू प्रिपेयर द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो वो वाला देख लेना है इससे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किडनी का ट्यूमर्स में व्हाट आर द बेनाइन कंडीशंस लाइक एडिनोमा, पेपिलोमा और हेमेंजियोमा। ठीक है, ये हो रहा, ये सब है हमारा बेनाइन किडनी का ट्यूमर्स, दीज आर नॉट कैंसरस। ठीक है, अगर हेमेंजियोमा मींस द ब्लड वेसल्स जो इन्वॉल्व है किडनी का, अगर वहां पे ट्यूमर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। एंड मैलिग्नेंट कंडीशन में क्या है, इन मैलिग्नेंट कंडीशन इंपॉर्टेंट is the Wilms tumor. ठीक है, Wilms tumor and renal cell carcinoma. These two important malignant conditions are there in case of kidney tumors. ये याद रखना है कि Wilms tumor जो होता है, this is the malignant condition in case of kidney tumor. तो देखते हैं Wilms tumor किसको बोलते हैं। तो Wilms tumor को it is also known as nephroblastoma. Remember, nephroblastoma is the other name of the Wilms tumor. It is the most common, Wilms tumor is the most common malignant tumor of the children. ठीक है, ये remember रखना, it is not occur in the adult, but in case of children, Wilms tumor or nephroblastoma is the most common malignant tumor in case of children. Ratio is common, male is to female. Okay, involves generally bilateral kidneys involved and it is hereditary. It occurs from the parents. और यहाँ पे which chromosome is involved? 11th number chromosome is involved. In case of polycystic kidney disease, we have seen the 16th number chromosome is involved. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, origin why यहाँ पे क्यों nephroblastoma इसको बोलते हैं और इसका origin क्यों होता है? It is origin due to immature embryonic tissue की वजह से। तो जब सेल्स का डेवलपमेंट होता है, टिश्यू का डेवलपमेंट होता है इन केस ऑफ फीटस, तो वहां पे क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर एम्ब्रायनल टिश्यू, यहाँ पे दिस ऑकर्स, द नेफ्रोब्लास्टोमा कंडीशन ऑकर्स। तो वहां पे जो स्मॉल सेल्स से क्या बनता है फीटस का, जो ऑर्गन डिफरेंस स्किन ब्रेन एंड किडनी डेवलपमेंट होता है। तो जिस सेल से किडनी बनता है उस
जिस टिश्यू से मेनली किडनी बनता है, उस टिश्यू इस टिश्यू अगर मान लो इमेच्योर डेवलप हुआ, अगर उसके वजह से क्या होता है, मेनली नेफ्रोब्लास्टोमा और विल्स ट्यूमर का ओरिजिन होता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एब्डोमिनल स्वेलिंग मिल सकता है एंड दे कैन बी hard mass present around the lumbar area, abdominal lump can be present, there can be present of obstruction or hematuria मिल सकता है, child can be anemic and fever can be or not be present. The spread, since it is malignant, it can be direct spread or it can be via lymph node or it can be via hematogenous or blood spread हो सकता है this cancer. Investigation के लिए we have to do the urine examination whether there any malignant cells we can find or not. Blood examination, since if it is hematogenously spread, then blood examination we have to do. Blood examination में लोग देखते हैं normal CPCs and all different tests. It is कैसा है उसका like normal range कितना है या नहीं है, या alter है कि नहीं. USG abdomen कराते हैं to appreciate why there is any heart mass or not. वहाँ पे check करते हैं कि क्या findings है. MRI और CT scan we can do, since MRI helps to do any soft organs, so better we can appreciate. ठीक है. ट्रीटमेंट में देखो, if this Wilms tumor or nephroblastoma is unilateral and it is present within the renal capsule, so renal is covered by the renal capsule, and if the tumor is present within the renal capsule, we have to do radical nephrectomy followed by chemotherapy. तो रेडिकल नेफ्रेक्टोमी करते हैं, वो एरिया का पूरा ही जो पार्ट है हम लोग रेडिकल नेफ्रेक्टोमी मींस वो एरिया सराउंडिंग ऑल द एरियाज वी विल रिमूव दैट पार्ट एंड देन वी हैव टू डू केमोथेरेपी. यहाँ पे अगर यूनिलैटरल है तो देन if it is not spread to the other organs, the child might survive. But if it is involving bilateral kidney with there is a distant metastasis, then fertility rate is very much high. If the condition is this tumor is spread beyond the renal capsule, then you have to do radical nephrectomy followed by chemotherapy plus radiotherapy. Okay. If it is unresectable tumor, if the tumor is present all over the surrounding the kidney, then we have to do chemotherapy, radiotherapy we have to do, because prior to surgery इसमें क्या करते हैं, before the surgery normally क्या करते हैं, after the surgery we will perform the radiotherapy, chemotherapy, but before the surgery chemotherapy and radiotherapy का क्या एक रोल रहता है कि जो साइज है ट्यूमर का वो रिड्यूस करने के लिए हम लोग before the surgery we are giving chemotherapy or radiotherapy such that the tumor size will decrease, then we can perform nephrectomy, then followed by chemotherapy. ठीक है, normally हम लोग बाद में करते हैं, but to reduce the tumor size, if the tumor is unresectable, we will reduce the size such that it will become resectable. Therefore, we will do nephrectomy and then followed by chemotherapy. Then bilateral, if there is bilateral involvement of Wilms tumor, what we will do? We will, if the suppose we will partial nephrectomy we have to do. Okay, if it is involved partially, then we have to remove partial nephrectomy, and if it is involved more than half of the kidney, then we have to do the radical nephrectomy. Okay, इसका patient बहुत fatal होता है of the Wilms tumor. Next टॉपिक आता है इंजरीज टू द किडनी. तो इंजरीज टू द किडनी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर देते हैं to cover this. It is not at all important. Most common injury क्या होता है kidney injuries is the blunt injury of the kidney. तो blunt injury होता है most commonly in case of kidney. Then types of kidney injury क्या क्या हो सकता है, depending upon the area involved there are different types of kidney injury. तो number one is the around the small subcapsular injury. Small subcapsular injury, so it is just around the capsule. अगर वहाँ पे injury हुआ, then we call it as small subscapular injury. Next is the larger subscapular injury. Large, it is involving the capsular over the capsular part. If it is involved around the larger area, then we call it as larger subcapsular injury. And remember, it is occurring due to any blunt injury. Cortical laceration भी हो सकता है. तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बिकॉज मगर मान लो इंजरी होता है, कोई ब्लंट इंजरी, यहाँ पे there is formation of hematoma, then we have to drain this hematoma and we have to suture that area.
cortical laceration हो सकता है because when it is involving the cortex part of the kidney. We know the cortex and medulla are the two parts. Cortex is the outer and medulla is the inner wala part. If it is the cortical laceration, then we will suture that area. और अदर क्या इन्वॉल्व हो सकता है किडनी की इंजरी में, द लैसरेशन विद पेरिनेफ्रिक हेमाटोमा. लैसरेशन रहेगा, द लैसरेशन यहाँ पे रहेगा इन्वॉल्विंग द पेरिनेफ्रिक. नेफ्रिक मींस अराउंड द नेफ्रॉन, अराउंड द किडनी. ठीक है, दैट इज द पेरिनेफ्रिक हेमाटोमा with laceration. Or it can be medullary laceration, a small area involved, we call it as a medullary laceration, or the medulla part involved. Cortical medullary laceration involving the cortex as well as medulla, call it as cortical medullary laceration. ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये सारा, मान लो इंजरी, किडनी इंजरी का, विल डू पार्शियल नेफ्रेक्टोमी. वी कैन डू रादर पार्शियल नेफ्रेक्टोमी if laceration is involved around the upper pole or any of the pole or a part of the kidney, we will do partial nephrectomy. Or if suppose if there is any hilar part of the kidney is involved, if the hilar injury is there, we will do nephrectomy. ठीक है, here अब आते हैं क्या फीचर्स मिलेगा केस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, बिकॉज यहाँ पे किडनी का क्या हुआ, ब्लंट इंजरी हुआ है, उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. हेमाचुरिया मिलेगा, इट कैन बी इमीडिएट और इट कैन बी डिलेड. डिलेड कब तक डिलेड मिलेगा, एट द थर्ड डे और ऑन द थर्ड वीक हमको हेमाचुरिया देखने को मिलेगा. ठीक है, एंड यहाँ पे हेमाटोमा अगर हुआ है तो देयर विल बी एन एब्डोमिनल डिस्टेंशन, देयर विल बी अ स्वेलिंग एंड टेंडरनेस अराउंड द लॉइन पार्ट ऑफ द किडनी, और देयर कैन बी bruise appearance around the abdomen that we can appreciate. Meteorism means when there is a hematoma formation, as I said, there will be abdominal distension, swelling and tenderness around the loin area part of the kidney. We call it a condition known as meteorism. Pain, there will be a localized to one flank or whole abdomen. ठीक है, hypovolemic shock, where severe injury हुआ है, there can be present of hypovolemic shock because kidney is not able to proper function, or the proper functioning of the kidney is hampered. Investigation में IBU, intravenous pyelography, USG abdomen and KFT. KFT हम लोग चेक करेंगे, kidney function test involving the urea, creatinine, then blood urea nitrogen levels. हम लोग चेक करते हैं whether the proper functioning of the kidney is present or not. ठीक है, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे if there is hypovolemic shock or there can be hemorrhagic shock. If the shock is severe or hemorrhagic shock is there, we will do blood transfusion. Analgesics, since pain है यहाँ पे, morphine injections we can transfuse. Antibiotics to support any superadded infection. Conservative treatment में we can do surgical exploration. तो हम लोग को surgically abdomen को open करना है, exploration करना है to stop the bleeding where which artery is involved. You have to stop the bleeding artery. ठीक है, देन हमको वहाँ पे मान लो कोई भी हेमाटोमा फॉर्मेशन हुआ है तो हमको एक्सप्लोरेशन सर्जिकल ओपन करके हमको हेमाटोमा को रिमूव करना. इफ देयर इज हाइलर इंजरी वी हैव टू रिपेयर दैट पार्ट, और इफ देयर इज एनी अदर इंजरी वी हैव टू रिपेयर दैट पार्ट. कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, हेमाचुरिया वी हैव सीन, हेमाचुरिया, देन मेटेरिज्म का कंडीशन. ठीक है, शॉक मिल रहा था पेशेंट को, किडनी फाइब्रोसिस और हो सकता है आफ्टर पोस्ट सर्जरी या फिर पोस्ट दिस ट्रॉमा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन हो जाता है. दैट इज व्हाई हाइपरटेंशन पेशेंट को मिल सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन. रेनल फेलियर बिकॉज किडनी कुड नॉट एबल टू प्रॉपर फंक्शन प्रॉपर्ली. इन्फेक्शन मिल सकता है, एली पेरिनेफ्रिक एब्सेस कंडीशन देखने को मिल सकता है. देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन ड्यू टू हेमाटोमा. नेक्स्ट, पेरिनेफ्रिक एब्सेस, ये भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट आई एम रीडिंग द टॉपिक. फॉर्मेशन ऑफ द एब्सेस अराउंड द किडनी इज नोन एज पेरिनेफ्रिक एब्सेस. कॉजेस क्या हो सकता है एब्सेस फॉर्मेशन का, दिस पेरिनेफ्रिक एब्सेस, इट इज बिकॉज इट इज सराउंडिंग द किडनी, वी कॉल इट एज पेरिनेफ्रिक एब्सेस. ओके, कॉजेस क्या हो सकता है, एक कॉजेस हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, ड्यू टू लाइक यहाँ पे इंजरी की वजह से हम लोग ने देखा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन पेरिनेफ्रिक एब्सेस हम लोग को मिल रहा था ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस हेमाटोमा. तो एक तो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेरिनेफ्रिक हेमाटोमा, और परफोरेशन थ्रू द रेनल कैप्सूल फ्रॉम पाइलोनेफ्रस और द रेनल कार्बंकल फॉर्मेशन. परफोरेशन की वजह से भी ड्यू टू रेनल कैप्सूल का परफोरेशन की वजह से वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बंकल प्रेजेंट मिल सकता है. ट्यूबरकुलस एक एब्सेस मिल सकता है
ट्यूबरकुलस अगर रहा तो उसमें एब्सेस फॉर्मेशन मिल सकता है, ट्यूबरकुलस पेरिनेफ्रिक एब्सेस, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टिकल एब्सेस कैन आल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एपेंडिकुलर एब्सेस फॉर्मेशन हेमाटोजेनस स्प्रेड से मिल सकता है, और पेरियूरेथ्रल लिम्फेटिक स्प्रेड से भी एब्सेस फॉर्मेशन मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर, इफ देयर इज पेरिनेफ्रिक एब्सेस देन देयर विल बी फीवर, फीवर मिलेगा यहाँ पे पेशेंट का, सिंस द एब्सेस फॉर्मेशन वेदर इट कैन बी ड्यू टू ट्यूबरकुलस और ड्यू टू एनी कॉर्टिकल एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है, और might be due to some hematogenous spread infection that is spreading towards the kidney, जिसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेंडरनेस मिल सकता है एब्डोमेन का, ठीक है। साइंस में क्या मिलेगा, अर्लियर इफ इंफेक्शन इज इन लोअर पार्ट, if the infection is in lower part, we will see some early sign and symptoms. If the infection is in upper pole, it is masked by ribs, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अपर पोल में नॉर्मली वहां पे रिब्स प्रेजेंट रहता है अराउंड देयर पार्ट, दैट इज व्हाई वहां पे जो इंफेक्शन होगा इट इज बेसिकली मार्क्ड बाय रिब्स, तो जल्दी साइन सिम्टम्स मिलेगा नहीं। यहाँ पे एक रीजन बताया है, जितना कि अगर मान लो लोअर पार्ट में होता है, लोअर पोल ऑफ किडनी में होता है, वहां पे साइन सिम्टम्स अर्ली देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अपर पोल। सिंस यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन है, हियर द डब्ल्यूबीसी लेवल्स विल बी राइज, नो पस सेल और ऑर्गेनिज्म इन द यूरिन, in the urine अगर हम लोग टेस्ट करेंगे the urine culture or routine examination, if there is any presence of any pus cell or not, to appreciate whether it is infecting, whether it is like infectious or not। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक्सरे केओबी करते हैं, एक्सरे केओबी मींस किडनी, यूरिनरी एंड ब्लैडर, इज स्पेसिफिक एक्सरे फॉर द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे एक्सरे केयूबी, we can appreciate the obliteration of the shore shadow or not, ठीक है, स्कोलियोसिस हो रहा है पेशेंट को, नहीं हो रहा है, एलिवेशन ऑफ दिस हेमोडायफ्राम। तो एक बार ये अगर याद होता है तो रखो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इन्वेस्टिगेशन में देखो कि वो क्या कराना है। इंट्रावेनस सारे इन्वेस्टिगेशन जो है ना मोर और लेस सब एक जैसे के है, वी हैव टू इवैल्यूएट इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कि वेदर कौन सा कंडीशन हुआ है, ठीक है। आईबीयू भी करा सकते हैं in two films, like one in erect posture and one in downward displacement of the kidney is not seen basically due to lying down position, therefore erect position में ज्यादातर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक साइन दिया है, ये याद मत रखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसजी होल एब्डोमेन कराते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो एब्सेस फॉर्मेशन हुआ है वी हैव टू ड्रेन दैट एब्सेस एंड via giving a lumbar incision we have to drain that abscess formation, then we have to culture that that जो भी कल्चर जो ड्रेन आया है उसका कल्चर करना है, that which organism वहाँ पे ग्रो किया है नहीं, then we have to decide antibiotics, and if the renal is not, if the renal system is compromised, then we have to do dialysis to the patient। तो लंबर इंसिजन जो हम लोग देंगे बेसिकली लार्ज इनफ टू ओपन द पॉकेट ऑफ द पर्स, तो जो इंसिजन देंगे इट मस्ट बी लार्ज इनफ टू ओपन द पॉकेट ऑफ द पर्स, ठीक है। ये हमारा खत्म हुआ जस्ट पेरिनेफ्रिक एब्सेस, जस्ट एक बार रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द रेनल सेल कार्सिनोमा, जिसको हम लोग ग्रेविट्स ट्यूमर भी बोलते हैं। तो हम लोग ने देखा कि नेफ्रोब्लास्टोमा हम लोग ने विल्ब्स ट्यूमर का बताया, एंड ग्रेविट्स ट्यूमर और हाइपरनेफ्रोमा इज द रेनल सेल कार्सिनोमा। Occurrence is male is to female is maximum. Age group is around 40 to 60 years mainly. Risk factors: those who are obese, diabetic mellitus from long-standing beer, chronic dialysis जो लोग patient करा रहे हैं, and APKD यानी adult polycystic kidney disease or horseshoe-shaped kidneys. These are the risk factors patient. Etiological factors: those patient who are consuming coffee, cigarette smoking congenitally or chronic cystic disease. These are the etiological factors involving the renal cell carcinoma. पैथोलॉजिकल जो कॉमन मिलता है रेनल सेल कार्सिनोमा इज द एडिनोकार्सिनोमा, मींस ग्लैंड का कार्सिनोमा, क्लियर सेल्स कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा एंड द पैपिलरी कार्सिनोमा। तो ये चार पैथोलॉजिकल कार्सिनोमा है, एक बार रीड कर लेना। दिस आर द फोर कॉमन कार्सिनोमा पैथोलॉजिकल कंडीशंस इन द आरसीसी। क्लिनिकल फीचर्स में वी गेट अ ट्रायड सिम्टम्स। ट्रायड में क्या मिलता है, देयर विल बी पेन, हेमाचुरिया एंड पैल्पेबल मास। पेन विल बी इंटरमिटेंट पेन, ठीक है, हेमाचुरिया मिलेगा, देन पैल्पेबल मास मिलेगा, एंड इट मस्ट बी लार्ज हार्ट एंड लॉइन रीजन में मिलेगा पैल्पेबल मास, एंड इट मूव्स विद रेस्पिरेशन, ठीक है। एनीमिया मिलेगा, देन एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस लाइक हाइपरटेंशन और स्वेलिंग मिल सकता है। स्प्रेड जो होगा इट कैन स्प्रेड इफ इट इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस, इट कैन स्प्रेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, रिब्स, बोन, वर्टिब्रा, ये सारा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वाया दी spread by the hematogenous spread if it is distant metastasis। तो स्टेजिंग क्या है रेनल न्यूप्लाज्म का,
देखो नंबर 1 स्टेज है इफ द किडनी इज विद इन द कैप्सूल एंड मान लो ये विद इन द कैप्सूल हुआ अगर कोई कार्सिनोमा देन इट इज स्टेज 1 if it is invading the renal capsule greater than 7 centimeter. Suppose this is the kidney and it is the outermost layer is the renal capsule and it is invading the greater than 7 centimeter, then it is stage 2. Stage 3 कब बोलेंगे? When kidney is involved plus the surrounding artery vein is also involved, like the renal artery, renal vein and inferior vena cava. ये अगर involvement हो गया then it is stage 3. And stage 4 का बोलेंगे when there is distant metastasis, like it is distant metastasis to any ribs, brain, bones and whatever is involved. तो वहाँ पे this is the stage number 4. These are the staging of the renal carcinoma जिसको हम लोग एक नाम देते हैं, it is Robson staging. नाम याद रखना, Robson staging होता है this staging of the renal neoplasm. First stage क्या था? When it is involving just it is present within the capsule. अगर कैप्सूल में रेनल कैप्सूल में है एंड इट इज लाइक इट इज more than 7 centimeter is involved around the renal capsule, then stage 2. Stage 3 when it is involving the kidney and the surrounding arteries and vein and inferior vena cava, and number 4 when the distant metastasis is present. Okay, then it is stage number 4.